Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today I may discuss Islamic scientific calculator. So there are 3 levels of study: starting level, medium level, final product level. So we are trying to study from medium level to product level. It is a little hard, but we want to introduce in Pakistan, our homeland, somewhat new approach to our study. It's very interesting approach, especially for students. So in first step I have designed my calculator. So you can see in this application, it is designed in Visual Basic 6.0. It is the properties window. In this application I have used text boxes, command buttons, label boxes and combo box. ठीक है, इसमें मैंने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए हैं. ये जो है मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और ये भी. ठीक है, आई हैव यूज्ड द कमांड बटन. ऑल दीज आर कमांड बटन्स. ठीक है, दिस इज कमांड बटन, दिस इज कमांड बटन और ये दो भी कमांड बटन है. इसके अलावा दीज आर लेबल बटन्स. ठीक है, ये भी लेबल बटन है. इट इज़ लेबल बटन. ठीक है, दिस आर यूज टू लेबल समथिंग. किसी भी चीज़ को लेबल करने के लिए यूज़ करते हैं आप. So first of all, I want to tell you how can you draw these label button. So click on this A sign. It is a label button. Click on it and drop it on the form. So click करके आप इसको उस पर drop कर दें. Then select the command button and drop it on your form. Then select the text box and then drop it on your form. Then select the combo button and drop it on your form. ठीक है. So after this I am selecting this label button. ठीक है, I am changing its back color. आप इसका back color change करोगे. You can select these system colors और palette colors. ठीक है, आप इसके color change कर सकते हैं. I'm selecting this one color. ठीक है, and then I am changing its caption. आप इसका caption change कर देते हो. For suppose I am writing here the result. So its caption has been changed. इसका caption change हो गया. ठीक है, और you can write what you want. जो आप चाहते हैं वो लिख लें. So I am writing here Uqiqa rate. ठीक है, ठीक है, ये लिख लें आप. ठीक है, for suppose ये है. ठीक है, you can change its back color as black and change its fore color. इसका बैक कलर हो गया, ब्लैक हो गया. और जो आपने राइटिंग लिखी है उसका फॉर कलर आप फॉर सपोज वाइट कर दें. सो आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे अपीयर होगी. ठीक है, सेलेक्ट इट. ठीक है, अब तो ये चीज़ देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे राइट कर दी. ठीक है, नेक्स्ट आई एम सेलेक्टिंग द कमांड बटन. ठीक है, आई एम चेंजिंग इट्स कैप्शन टू, for suppose I am selecting this as 1. ठीक है, मैं इसे 1 लिखना चाह रही हूँ. ठीक है, I am changing its back color. मैं इसका back color change कर देती हूँ. I am selecting the system color blue and then I am changing its style to graphical. ठीक है, then no the button is appear like this. ठीक है, बटन इस तरीके से appear हो जाता है. ठीक है, similarly if you want to draw another button, you change its back color like this one and change its style to graphical. ठीक है, now change its caption like result. ठीक है, so in this way I have designed my button. ठीक है, ये इस तरीके से आप अपना बटन डिज़ाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, आई हैव चेंज इट्स बैक कलर लाइक दिस ब्लैक एंड इट्स फॉर कलर लाइक वाइट. ठीक है, सो इन दिस वे माई टेक्स्ट बॉक्स इज डिजाइंड. नेक्स्ट थिंग इज combo box. ठीक है, you can change its back color to, from system palette you can select its color. ठीक है, color select कर सकते हैं. So this way I have designed my
buttons. All these buttons are designed in this way, ठीक है. But if you want to get this type of size, you can change its size to you can change its size, ठीक है, in this way, ठीक है. Next, you can change it into bold and you can minimize its size, ठीक है. तो इस तरीके से सारी मैंने डिज़ाइनिंग की है. All these are like designed in the same way. I have used text boxes, ठीक है. This is text box, command buttons and label buttons, ठीक है. Only this is combo button. So now I am अच्छा. Next, the most important thing is that how you can get your function. आप अपना function कैसे जो है ना, या इसका काम कैसे हासिल करेंगे, ठीक है. क्लिक ऑन द रिजल्ट बटन, ठीक है. कमांड 3 डॉट अंडरस्कोर क्लिक आ गया, यानी कमांड 3 को आपने क्लिक किया इस यहाँ पर. सब मीन्स इट्स अ फंक्शन, सब फंक्शन, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट का नेम क्या है. व्हाट इज द नेम ऑफ रिजल्ट? इट्स नेम इज कमांड 3. तो यू कैन सी दैट हियर कमांड 3 अंडरस्कोर क्लिक आ गया, ठीक है. तो आपने क्या, यू हैव टू चेंज इट्स नेम. इसका नेम चेंज कर दें, इधर रिजल्ट ही लिखते हैं, माई रिजल्ट कर दें इसका नेम, माई रिजल्ट, ठीक है. सो इट्स नेम हैज़ बीन चेंज्ड. व्हेन यू क्लिक ऑन इट, देखिए माई रिजल्ट अंडरस्कोर क्लिक, तो इसके सब फंक्शन में आपने जो भी लिखना होगा काम, तो वो वही फंक्शन परफॉर्म कर देगा, ठीक है. तो इस तरीके से ये काम हो गया, ठीक है. तो अब मैं जो हूँ ना, इस सारे को मैं डिलीट कर देती हूँ. देखिए टेक्स्ट बॉक्स का नेम भी है, हियर इट्स नेम इज टेक्स्ट 2, ठीक है. इसका नाम टेक्स्ट 2, आप इसका नेम चेंज कर दें. आप इसका नेम चेंज करके स्क्रीन रख दें, स्क्रीन 1 कर दें, ठीक है. नाउ यू क्लिक ऑन इट, दे स्क्रीन 1 अंडरस्कोर चेंज आ गया, ठीक है. इसके क्लिक इवेंट में जाने के लिए अब यहाँ से जाकर क्लिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ये देखिए क्लिक कर. सो इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट योर रिस्पेक्टेड फंक्शंस, ठीक है. अपने रिस्पेक्टेड फंक्शंस को गेट कर सकते हैं. नाउ आई एम डिलीटिंग इट, ठीक है. अब ये देखिए, तो ये एक सिंपल सी बात है कि मैंने डिजाइनिंग कैसे की और मैं इनके क्लिक इवेंट में मुख्तलिफ फंक्शंस लिख रही हूँ, ठीक है. अब these all these are buttons, ठीक है. व्हेन वी क्लिक ऑन द बटन, आई एम क्लिकिंग ऑन इट, इट्स रिस्पेक्टिव फंक्शन इज जो उसका काम मैं जो से चाहती थी कि ये काम करे, वो उसके पीछे लिखा हुआ है. सिमिलरली यू हैव टू क्लिक द बटन्स. तो behind the button you can see some code has been written and this application is performing that specified function which is written in the form of code. जो कोड में लिखा है, इसका कोड देखें, इसके क्लिक इवेंट में मैंने लिखा हुआ है. देखिए 3 के क्लिक में मैंने 3 का जो है ना फंक्शन, उसका सब फंक्शन है, उसके अंदर जो वो मैं चाहती हूँ, जैसे कि 3 मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ तो 3 लिखा है. इसी तरीके से आप 2 देख लें, आप 2 को क्लिक करें तो इसमें मैं 2 को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, यानी कि जो मैं काम करना चाह रही हूँ वो ये कर रहा है, ठीक है. अच्छा, अब हम सपोज समझते हैं कि ये हाउ दिस कैलकुलेटर कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन. ये अपना परफॉर्म कैसे करेगा फंक्शन. तो उसमें मैंने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले जितने मैंने बटन्स बनाए हैं, कमांड बटन बनाए, उन सब बटन्स के पीछे कोई ना कोई कोडिंग लिखनी होती है, या ताकि वो फंक्शन जो मैं हासिल करना चाहती हूँ वो ये परफॉर्म करे. जैसे कैसे, आई एम रनिंग दिस एप्लीकेशन, मैंने ओके समय में मेरी नुकसान में कर देती हूँ इसको, ओके, ठीक है. अच्छा, अब देखिए, अब मैं चाह रही हूँ कि देखिए 1 फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिंट करती हूँ 2, ठीक है. 2 + 3 = 5, ठीक है. 2 + 3 = 5 आ जाए, ठीक है. अच्छा जी, अब इसको मैं क्लियर करती हूँ. नो 3 - 1 = 2, ठीक है. अच्छा जी, आई एम क्लियरिंग इट अगेन, ठीक है. 7 × 2 = 14, ठीक है. नाउ आई एम क्लियरिंग इट अगेन. 6 / 2 = 3, ठीक है. यहाँ तक तो आपको समझ आ गया. अब आई एम डिस्कसिंग इट हाउ आई हैव रिटन द फंक्शन बिहाइंड दिस बटन. So first of all, you can see that I behind the command button 1 I have written this one statement. यानी कि screen dot text mean text
जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नेम मैंने स्क्रीन रखा हुआ है। देखिए इसका जो है ना, इसका नाम ये देखिए मैंने यहाँ पर आई हैव रिटन हेयर स्क्रीन, ठीक है। इस स्क्रीन डॉट टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम मैंने स्क्रीन रख दिया, ठीक है। तो स्क्रीन यानी कि टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट या स्क्रीन डॉट टेक्स्ट कंकैटिनेशन यानी कि एंड वन, यानी इसके अंदर वन आ जाए, ठीक है। वन के लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। इसी तरह टू के लिए मैंने टू लिख दिया कि इसके अंदर टू आ जाए, इसमें थ्री आ गया, ठीक है। तो इसी तरह 4 5 6 वी आर सपोजिंग 6, ठीक है, 6 आ गया। एंड हेयर आई एम सपोजिंग 9, ठीक है। तो सेम कोड इज रिटन बिहाइंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। बिहाइंड 0 आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्क्रीन डॉट टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट के पीछे ये हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी, ये कोड लिखना होगा, देन आपको वो स्पेसिफाइड जो है डिजिट प्रिंट आपका हो जाएगा, ठीक है। देन अब हम आते हैं प्लस साइन के पीछे। देखिए प्लस साइन में क्या है कि स्क्रीन वन पे जो स्क्रीन पे या जो अपने टेक्स्ट वन पे जो में जो टेक्स्ट लिखा था वो आपके एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ठीक है। एंड देन इफ़ यू आर प्रेसिंग प्लस देन स्क्रीन क्लियर हो जाए और फिर जो अपना आप अगला लिखेंगे वो उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। इसके लिए अब देखिए प्लस के पीछे मैंने जो लिखा, आई हैव रिटन द कोड बिहाइंड द प्लस इज सेम the code I have written behind minus, but here the sign has been changed, operator has been changed, and same code has been written behind multiplication function, ठीक है। and same code is written behind the division function, ठीक है। ये सब कॉमन हो गए, but behind equal sign I have written this one code, ठीक है। this one code is showing that screen dot text is the text which was typed at the first time, or second which has been typed in the text box, तो वो आपके वेरिएबल में चला गया, ठीक है। अब आपने ये चेक करना है कि आपका C1 में जो मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिखे थे वो सब के सब फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर थे, देन प्लस साइन वाज स्टोर्ड एंड देन वो क्लियर हो गया, एंड देन अब जो स्क्रीन डॉट टेक्स्ट है इट इज सेकेंड वन वैल्यू एंड इट इज स्टोर्ड इन सेकेंड वन वेरिएबल, ठीक है। then I'm supposing that if if the operator is plus or minus or multiply sign or division sign is there, मतलब इनमें से अगर कोई साइन, इनमें से कौन सा साइन है जो आपने प्रेस किया है, ठीक है, कौन सा फंक्शन आपने चूज किया है, तो देन उसी हिसाब से आपका जो एक्शन अप्लाई होगा, फंक्शन अप्लाई होगा। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग प्लस देन द टू वैल्यूज विल बी एडेड, इफ़ यू आर सेलेक्टिंग माइनस साइन द सेकंड वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वन, इफ़ यू आर multiplying the two values then the two values may be multiplied. Now same in the case of division case, okay. Now we can say that other functions. So the same case is here that behind these buttons I have written their specified functions. For suppose in the percent sign you can see that the screen text you have the value you have typed on your screen is divided by 100. जो भी आप वैल्यू लिखोगे उसकी उस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो भी डिवीजन होने के बाद आपकी फाइनल वैल्यू होगी उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यू कैन सी इट हेयर like this, for suppose 200 परसेंटेज देखिए 2 आती है, ठीक है ना। 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 2, ठीक है। आपका आंसर आ गया। देन आप नेक्स्ट देख सकते हैं, फॉर सपोज आपने 45 है तो अच्छा अब आपने नेक्स्ट कॉस देखिए, कॉस का साइन मैंने पीछे लगा दिया, फंक्शन वन मैथ डॉट कॉस, मैथ का जो कॉस फंक्शन है स्क्रीन के अंदर आप जो भी टेक्स्ट अप्लाई करोगे उस पर कॉस फंक्शन लगेगा, ठीक है। कॉस फंक्शन विल अप्लाई ऑन द स्क्रीन डॉट टेक्स्ट, जो भी आपने उसमें वैल्यू डाली होगी उस पर कॉस फंक्शन लग जाएगा मैथ्स का। it will store in the function one variable and it will appear on screen again, ठीक है। then you can see it here, you can see 45 cos, ठीक है, 45 की cos की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई एम क्लियरिंग इट, सेम 45 साइन, ठीक है, आई एम क्लियरिंग इट 45 tan, क्लियरिंग जी 45 secant, clearing 45 cosecant, I'm clearing 45 cotangent, okay. So in this case
I have written that specified function behind these buttons. I'm selecting the cause, so you can see that here the value you have typed on screen screen.text was 45 and 45 cause 45 हो गया, ठीक है. तो its value has been appeared on your screen, ठीक है. तो and in the same way I have used a sine function, tan, secant, cosecant एंड cotangent, ठीक है ना. तो अब ये देख सकते हैं, मैं फर्स्ट उसको सेकेंड ले लेती हूँ, ठीक है. तो इसमें मैंने रिस्पेक्टिव कोडिंग आई हैव रिटन बिहाइंड कोसेकेंड, ठीक है, कोसेकेंड बटन, ठीक है. उसके पीछे मैंने उसके क्लिक के मिनट में मैंने लिख दिया कि ये कैसे होगा, ठीक है. 1 बाई मैथ्स डॉट साइन स्क्रीन, जो स्क्रीन डॉट टेक्स्ट होगा उसकी साइन की वैल्यू आ जाएगी और वो 1 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है. मैथ डॉट साइन ज़्यादा है, आपको मैथ डॉट साइन फंक्शन से ही लास्ट करना पड़ेगा. देन यू हैव टू डिवाइड इट बाई 1, ठीक है. एंड द वैल्यू विल स्टोर्ड इन द फंक्शन 1 वेरिएबल एंड इट विल अगेन ट्रांसफर इनटू द स्क्रीन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, उसमें आ जाएगी. तो सेम केस है इन ऑल दी 6 फंक्शन विल बी टाइप्ड इन द सेम वे, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट यू कैन सी दैट आई हैव टाइप्ड 23, ठीक है. इट्स क्लियरिंग योर स्क्रीन. किसी किस्म का भी आप डिजिट लिख लें, ठीक है, ये क्लियरिंग स्क्रीन कर रहा है. अच्छा जी, अब आप देख लेते हैं कैसे होता है. अच्छा जी, अब इसके अलावा एक और चीज़ है 2.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1.2, ठीक है. अब हम इन दोनों चीज़ों को भी देख लेते हैं हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है. अच्छा जी, स्क्रीन डॉट टेक्स्ट यानी कि आपका टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट में क्लियरिंग हो जाए, जो भी लिखा है वो क्लियर हो जाए. तो ये क्लियर बटन नीचे से आपके जो ये क्लियर बटन है, ये आपको आपकी स्क्रीन को खाली कर देगा, ठीक है. देन नेक्स्ट है पॉइंट आ जाता है आपका फर्स्ट बस 2.4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. तो इसको हम देख लेते हैं, इसके पीछे हमने क्या लिखा, ठीक है. आई एम जस्ट पॉइंटिंग डॉट, ठीक है. इट इज़ डेसिमल, द स्क्रीन में कंसिडर इट एज अ डेसिमल, इसको डेसिमल सपोज करेगी, ठीक है. अच्छा जी, next a number of functions are there. I have also designed and I have written their code. I am clicking log, ठीक है. Here you can see that by using math class and its log function, you can see that screen.text is the value you may typed on your calculator application. The log may consider it as is add as a value, ठीक है. After getting the log, it will stored in function 1 as a variable and then it may multiply by this one value and it may store in the screen.text, ठीक है. तो log की वैल्यू हम ऐसे गेट कर लेंगे. सेम केस नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टोरियल. Here in factorial you know that the factorial must have a value, ठीक है. it must not be 0. factorial की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट इट में भी 1, ये 1 होनी चाहिए, ठीक है. स्क्रीन में जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो n में स्टोर हो जाएगी, ठीक है. और जितने भी 1 to n तक जितने भी वैल्यूज़ हैं वो फैक्टोरियल में इसके साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे. बाय यूजिंग दिस वन लूप इट में स्टोर इन द फैक्टोरियल 1 वेरिएबल एंड देन प्रिंट ऑन द स्क्रीन. सो दिस function may print the factorial. We can check it here. You can see that if you want the factorial of 3, you can type the 3 and then when you press this one button, 3 multiplied by 2 multiplied by 1, 3 2s are 6. If you want to get the factorial of 4, 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, so the value is 24. In the same way you can get the factorial of another values. For suppose you want to get the factorial of 8, you can get it in this way. So next you can see here that if you want to get the log value, you can print here this one and you can get this one value, okay. Next if you want to get the square root of 4, here the square root of 4 is 2, square root of 8 is 2.8, ठीक है. तो अब हम चेक कर लेते हैं इनके पीछे which type of code I have written behind these. You can see behind square root I'm using here the math.square function and the value I have typed in my text box
get the square root function, and it may store in the function one variable, and which may type on your screen or main text box. ठीक है. Next x square function. You have to suppose that on the screen screen.text. Screen.text means the value which is you have typed on your screen may store in the in a variable, and the variable has some power 2, and it may store in the function, and the function again appear on the function variable, and this variable may again store in the screen.text or text one box. We can see it here. You can see this 2 may store in the x, and when we click it here, 2 to the 4. Again I am clearing 4 raised to power equals to 4 4 is 16. Again I am clearing it 8 8 is 64. So here it's giving the square of the screen dot text value. Okay. So then I'm clearing it. Similarly, I want to get the value of I want to get the cube of 2. 2 to the 4 to the 6. 2 to the 4 to the 8. Sorry. 2 to the 4 to the 8. 8 आ गया. ठीक है. Similarly, I'm clearing it. 8. 8 multiplied by 8 equals to 512. ठीक है. ये चीज आ गई. I'm clearing it. For suppose 6 multiplied by 6 multiplied by 6. ठीक है. 216. So here you can understand how I have designed it, and I have written the code to get such type of results. So again you can see if you want to get the 1 by x value. ठीक है. For suppose you want to suppose 1 by 4. What will be the result? 0.25. You want to get the 1 by 2 value. 2, it's 0.5. For suppose you want to get 1 by 9. It's 0.1. Okay. So you can see which type of code I have written behind. So it's giving me the 2 power. ठीक है. ये 2 पावर दे रहा है. It's giving me the 3 power. ठीक है. Then for this function I'm writing this one code. ठीक है. The screen.text is stored in this here. ठीक है. And the value you have typed in your screen is divided by 1, and it is stored in function 1, and then it may appear on your screen. So it's very simple. Next I am writing some type of digits. ठीक है. So I have stored them in memory. ठीक है. मैं इनको memory में store कर देती हूँ. I'm storing this one in memory, and when I want to restore it, मतलब उसको memory से get करना चाहती हूँ, I'm clicking this one button. It is restoring from the memory. यानी पहले मैंने उस नंबर को और डिजिट को मेमोरी में स्टोर किया, और फिर मैंने उसको मेमोरी से गेट कर लिया. तो इट इज़ वेरी सिंपल. इसको आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया. ये देखिए जो स्क्रीन पर टेक्स्ट था, आई हैव स्टोर्ड इट इन द वेरिएबल. ठीक है. स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट है आई एम स्टोरिंग इट इन फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल, एंड आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन. स्क्रीन को हम क्लियर कर रहे हैं, और इन वेरिएबल्स को हम स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल्स में. बट व्हेन वी गेट दीज वेरिएबल फ्रॉम स्क्रीन, देन यू कैन सी दैट these variables are again transferred to screen. दोबारा स्क्रीन में आ गए. वो पहले मैंने मेमोरी में स्टोर कर दिए थे, यानी मैंने वेरिएबल्स में स्टोर कर दिए थे, और फिर उन वेरिएबल जिनमें ये स्टोर थे वहां से मैंने वापस गेट स्क्रीन पे कर दिए. सो इट इज हियर. नेक्स्ट चलते हैं. You can see here that मैंने यहाँ पर the number you have typed on your screen will appear as the power of 10. 10 की power appear होगा, and will store in a variable and appear on screen. Again you can see it how. For suppose I want 10 raised to power 6. Here appears 6 zeros. For suppose you want 3 zeros.
1000, ठीक है. For suppose you want 9 zeros, ठीक है, here it appears, ठीक है. तो ये इस तरीके से 10 raised to power 9 हो गया, ठीक है. तो मीन्स आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. ध्यान चलते हैं नेक्स्ट. और सपोज आंस चेक कर लेते हैं. आंस में देखें वही सारा जो इक्वल्स के पीछे आपने लिखा था, यानी कि आंस वही कुछ करता है. जैसे आप इन सबको प्लस करते हैं तो जो इक्वल आपको आंसर दे रहा होता है, आंसर भी आपको वही दे जाता है. तो सेम जो इक्वल के पीछे कोड था, द कोड विच आई हैव रिटन बिहाइंड इक्वल इज रिटन बिहाइंड द आंस, ठीक है. आंस भी आपको वही देगा. जैसे आप इसको चेक कर सकते, यू कैन चेक इट्स गिविंग द स्पेसिफाइड आंसर 2 + 2 = 2, ठीक है, 4. तो सेम फंक्शन इट्स डूइंग. देन यू कैन सी द एक्सपोनेंट, ठीक है. एक्सपोनेंट आई कैन शो यू इट्स फार्मूला which I have typed. You can see that exponent screen.text. तो मैंने ये exponent स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट आएगा वो मुझे exponent फॉर्म में आ जाए, उसको मैंने एक वेरिएबल में आई एम शोइंग इट इन अ वेरिएबल, ठीक है, एंड देन आई एम प्रिंटिंग इट ऑन स्क्रीन, ठीक है. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फार्मूला टू यूज इट, ठीक है. तो आप अगर इफ यू आर सर्चिंग ऑन इंटरनेट देन यू कैन सी द 2 टाइप्स ऑफ फार्मूला. नंबर 1 is this and number 2 is this. So it's depend upon you which type of function you want to use in your calculator. आप कैलकुलेटर में कौन सा यूज करना चाहते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है. बट हेयर आई हैव suggested this one because the result on the internet was according to this one formula. क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे थे कैलकुलेटर्स के विंडो 10 के अंदर भी यूज्ड कैलकुलेटर के, वो इसी से फार्मूले से सही आ रहे थे, और जो नेट पे भी जो कैलकुलेटर बना हुआ पड़ा है उससे भी इसी के रिजल्ट ही आ रहे थे. तो मैंने वही चूज कर लिया जो जिससे रिजल्ट सही आ रहे थे, ठीक है. तो नेक्स्ट वन आई एम रनिंग दिस वन. So you want to print date on your calculator, then click this one, ठीक है. It's the date and time of your PC, ठीक है. आपके PC पे जो उसका टाइम है और जो डेट है वो आपको प्रिंट आउट हो जाएगी, ठीक है. Similarly the time, if you want to print the time then you can click this one button, ठीक है. I'm clicking this one and then I'm printing the time too, ठीक है. Which type of code I have written you can see here. Clicking on the form form, then you can see that behind the date I have written this one. The now function may get the date and time, and it will store in the today, and it will appear on the screen, ठीक है. इस स्क्रीन पे जो है ना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है. now function is getting the time plus date plus time, both things it can get from your PC. Next thing is Usher and Zkat, ठीक है. So the most important thing is that you know I want something interesting, something showing my culture and my religion, ठीक है. जैसे हर बंदा जो होता है वो अपनी कल्चर को शो कर रहा होता है, अपने रिलीजन को शो कर रहा है. सो आई हैव डिजाइन माई कैलकुलेटर इन अ वे दैट इट इज शोइंग आवर कल्चर, आवर रिलीजन, ठीक है. हमारे कल्चर रिलीजन को कुछ शो कर रहा हो. सो इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ पार्ट्स, ठीक है. एंड इन दिस पार्ट आई हैव डिवाइडेड इन अ वे साइंटिफिक कैलकुलेटर, फितराना कैलकुलेटर, अकीका रेट एंड इंटरेस्टलेस इस्लामिक अकाउंट कैलकुलेटर, ठीक है. इन इस टाइप की उशर, ज़कात, इस टाइप की चीज़ों के लिए मैंने ना इस कैलकुलेटर को बेसिकली डिज़ाइन किया. सो वी मे स्टडी ऑल दिस टाइप ऑफ फंक्शंस टू. तो मैं इन फंक्शंस को भी इनमें स्टडी कर लूँगी, हम इनको भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है. तो उशर में आई एम क्लिकिंग उशर, ठीक है. तो यू कैन सी इन उशर आप यू नो दैट द वैल्यू यू हैव रिटन इन योर स्क्रीन मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि देखो उशर 1/10वां हिस्सा होता है किसी भी वैल्यू का, ठीक है. तो मैंने उसके लिए फार्मूला अप्लाई किया और उसको अपनी स्क्रीन में स्टोर करा देना. तो उशर जो होता है वो वही ऐसा माली के ऊपर जो 10वां हिस्सा लगता है, ठीक है. फिर जो ज़कात होती है वो जो 2.5 के हिसाब से लगती है. तो ठीक है जी, आई एम अप्लाइंग दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला मे बी अपीयर ऑन माई कैलकुलेटर स्क्रीन. यू कैन सी दैट इफ यू हैव 1 lakh, if you have 10 lakh, then what will be your zakat? Your zakat is 25,000, ठीक है. And if you have 25,000,
if you have 25 lakh, yeah, then your Usher maybe इट्स योर Usher, ठीक है। तो ये आपका Usher होगा। फॉर सपोज आई हैव वन ठीक है, your Usher may be this one, it's your Usher, it's 1/10 of your whole amount, and then zakat is 2.5 of your whole amount, ठीक है। तो इस तरीके से आपको Usher एंड zakat होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। एंड देन फितराने की तरफ आ जाते हैं। यू नो आफ्टर ईद मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू पे देयर फितराना। You can you have to give your fitrana according to the barley rate, wheat rate and date rate। आप barley, wheat और date के हिसाब से अपना फितराना देते हो, ठीक है। फर्स्ट suppose you are giving the fitrana according to barley rate, ठीक है। सो हेयर द रेट ऑफ आइटम इज़ 300, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं कि फॉर सपोज एक कोई भी भाई हैं वो देना चाहते हैं अपना फितराना, ठीक है। फॉर सपोज उनके घर में उनकी एक वाइफ है, 3-4 बच्चे हैं, ठीक है। फॉर सपोज 4 बच्चे हैं, ठीक है उनके। तो आप देखें रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो फॉर सपोज लेते हैं वीट लेते हैं, गंदम लेते हैं, तो गंदम का रेट जो है 250 है अगर, देन उनका फितराना इतना बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने डेट, अगर वो खजूर के हिसाब से देते हैं तो 500 रुपीज़ kg के हिसाब से खजूर है, देन उनका फितराना इतना बन जाएगा, ठीक है। देन अकीका की बात करते हैं। अगर एक बंदा है वो अकीका करना चाह रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ गोट्स फॉर सपोज ही बेबी बॉय, देन ही हैव टू गिव 2 गोट्स, उनको उसको 2 बकरियाँ चाहिए होंगी। And what will be the rate? For suppose the rate of 1 goat is 25,000, then that price will be for second इसको मैं बंद कर लेती हूँ। ओके, जस्ट मिनट, ठीक है। सपोज ये 25,000 गोट रेट 2 है, 2 है 25, तो नेट प्राइस क्या आ जाएगी। ये वेरिएबल के नेम में मे बी पॉसिबल प्रॉब्लम आ गई, मैं चेंज कर देती हूँ उसको यहाँ से। गोट इज 2, ओवरफ्लो, ठीक। चलो इसको मैं ना बाद में कर लेती। अच्छा, ओ सॉरी 110, हाँ जी, यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, आप शायद हो जाए। ठीक है, तो उसको मैं 2 कर देती हूँ, तो ये 5000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से। अच्छा, मैं समझ गई इसमें क्या प्रॉब्लम थी। इसमें प्रॉब्लम ये आई है कि जैसे मैं ये काम कर रही हूँ, उसको मैं इंटीजर के तौर पे ले रही हूँ, उसको मैं डबल के तौर पे लेती हूँ, क्योंकि इंटीजर में आप बड़ी वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, मे बी पॉसिबल ये प्रॉब्लम ना हो। इसमें 2 डाल देते हैं, इसमें 25,000 डाल देते हैं, ठीक है। और 50,000 और प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो ये हो सकता है कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि वन यू आर कोडिंग यू हैव यूज्ड अ वेरिएबल नेम फॉर 2 टाइम्स, देन इट मे बी पॉसिबल कि हो आपका योर कंपाइलर में गिव एरर, ठीक है। तो इधर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने जो है ना इंटीजर ले लिया था, आई हैव टेकन इंटीजर
आई टेकन माई वेरिएबल्स एज ए इंटीजर ले लिया, तो मैंने जैसे डबल ले लिया तो फिर मेरा प्रॉब्लम हल हो गया, ठीक है। डबल जो है वो बड़ी वैल्यू को सेव कर सकता है, लेकिन इंटीजर जो होता है वो बड़ी वैल्यू इतनी सेव नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर फॉर सपोज आपके पास 1 लाख है अमाउंट, ठीक है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट उसमें से आपको 20,000 है, ठीक है, और लॉस आपका फॉर सपोज 500 है, ठीक है। फॉर सपोज आपको कुछ चीज़ों पे 20,000 प्रॉफिट हुआ है और कुछ चीज़ों पे आपको लॉस जो है 500 हो गया, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। देन हाउ मेनी पीपल्स आर यूजिंग दिस वन अकाउंट, इस अकाउंट को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? फॉर सपोज 4 पीपल्स आर देयर और फॉर सपोज 5 पीपल्स आर देयर, ठीक है। सो अब देखिए इस्लामिक अकाउंट ये होता है आप कि उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों में, अगर एक बिज़नेस किया जा रहा है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस में दोनों में जो है जो बंदा बिज़नेस करता है वो शामिल होता है, और बाहर के कंट्रीज़ में इसको कहते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। अब MBA फाइनेंस में लोगों को तो ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसको कहते हैं कि जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस दोनों में शेयर कर रहा होता है कोई भी बंदा, और ये सूद, इसमें इसको सूदी अकाउंट नहीं कह सकते आप, सादा अकाउंट कह सकते हैं, तो और इंटरेस्टलेस इस्लामिक अकाउंट कह सकते हैं। यानी कि इस्लाम में लेन देन का भी तरीका ये है कि जब आप किसी के साथ कारोबार करें तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों में आप शामिल हो जाएं, ठीक है। तो इसमें फॉर सपोज मैंने टोटल अमाउंट फॉर सपोज 1 लाख थी, उसमें प्रॉफिट जो है वो 20,000 था और लॉस जो है 500 था चीज़ों के ऊपर, और कितने लोग ये मिलकर एक बिजनेस कर रहे थे, फॉर सपोज 5 पीपल कर रहे थे। तो जी अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5 लोगों में, तो देखें हर बंदे पे प्रॉफिट 4,000 आ जाएगा, ठीक है, और लॉस जब हम सब पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा? आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉस ऑन 5 पीपल, इट इज़ 100, ठीक है। सो इन दिस वे आई हैव डिज़ाइन माई दिस इस्लामिक साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। आई हैव डिज़ाइन माई प्रोडक्ट इन प्रोफेशनल वे, मैंने इसको प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन किया सो दैट एनी वन वांट टू डिज़ाइन सम टाइप ऑफ एप्लीकेशन, सो ही हैव अ ब्रीफ नॉलेज। तो मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया कि अगर आप कोई बंदा भी किसी भी किस्म की कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहता है तो उसके पास एक ब्रीफ नॉलेज हो, ठीक है। हाउ यू हैव टू डिज़ाइन योर प्रोडक्ट, आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो इट मे हैव सम टाइप ऑफ स्पेसिफाइड नॉलेज, उसके पास कोई स्पेसिफाइड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ये मेरा ओवरऑल एक इस्लामिक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अब आप देखना अपने इस कैलकुलेटर को कैसे देखना चाहते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू व्यू माय ओनली साइंटिफिक कैलकुलेटर देन आई हैव टू व्यू दिस वन थिंग, इट इज सफिशिएंट फॉर माय साइंटिफिc calculation, but if I want to see the Fitrana calculator then I have to click this one button, and if I want to select the Interestless calculator then I have to see this one thing, ठीक है। So for this purpose I have designed it in this way, ठीक है। मैं आप देखिए मैं Interestless calculator है, तो अगर मैं Fitrana only calculator तक देखना चाहती हूँ तो I am clicking this one and I am clicking this one if I want to view only the scientific calculator. So I have I have performed this one. You can see this behind view. You can see that I have set the width and height of form. I have named the form made in Pakistan. ये पाकिस्तान ये जो फॉर्म है जो मेरा आप देख सकते हैं, you can see इस फॉर्म का नाम जो है ना मैंने मेड इन पाकिस्तान रख दिया, ठीक है। तो इस फॉर्म के विड्थ और हाइट में मैंने ये वैल्यूज रख दी। सो दीज वैल्यूज आर सेटिंग द हाइट एंड विड्थ फॉर दिस वन फॉर्म, ठीक है। इन केस इफ इट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर, बट इन केस इफ इट इज Fitrana calculator, I have changed the width and height, and in case if it is Interestless calculator then I have changed the width and height. So when I click on scientific calculator it may gain this one height, and if I am clicking this one its height may change in this situation, and if I am changing the height and width of this form so you can see the result. तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमने आपको एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने के बारे में सिखाया कि आप अपना अगर कैलकुलेटर डेवलप आप इससे भी अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपन जो एफर्ट्स आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। सो डिपेंड अपॉन द लेक ऑफ टाइम एंड आई हैव डिज़ाइंड ओनली द
सम स्टैंडर्ड थिंग्स, मैंने टाइम भी कम था लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं जो ना ज़रूरी चीज़ें हैं और जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो मैं मसलन बता दूँ, ठीक है। सो आई थिंक सो कि आप इसको लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ये मेरे ख्याल में एप्लीकेशन ऐसी है कि ICS BCS तक के स्टूडेंट्स को हेल्प दे सके और अपनी असाइनमेंट्स डिज़ाइन करने में। सो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको मज़ीद और जो है वो ऐसी ही एप्लीकेशंस जो हैं डिज़ाइन करना सिखाऊं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।